जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही था श्री अरविंदो का मैसेज, और ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी ये जो प्रयास है, मैंने जैसे बात कर रहा था राइट, कि हम लोग सबका एक एम होना चाहिए। तो हम लोग जैसे यहाँ से आए हैं, हम लोग बेसिकली उड़ीसा से हैं, और यहाँ पे आए पूरे कंट्री में हम लोग जा रहे हैं इस मैसेज को लेके। श्री अरविंदो 15 अगस्त 1947 को उनका नॉट 1947, 1872 को उनका जन्म हुआ था। सो 15 अगस्त इज हिज बर्थडे। तो ये जो साल है 2022 15 अगस्त, उनका 150वीं जन्म जयंती है, तो उसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक पूरे साल भर हम लोग एक ट्रिप कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता उनका जन्म स्थान, और इट विल बी एंड इन 15 अगस्त 2022 इन पौंडीचेरी। तो तपोभूमि है वो। तो हम लोग इस अपने जो यात्रा है अपना, उसका नाम भी ऐसे ही रखे हैं, जन्मभूमि टू तपोभूमि। ठीक है, तो ये मैसेज हम लोग सबके पास पहुंचा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज आप लोगों के पास भी ऐसे उपस्थित हुए हैं पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्पेशली अमित प्रकाश जी और आप सबको जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और हमारा हमने सुना इतना धैर्य के साथ मदन श्री अरविंदो की मैसेज आप लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए। I'm grateful to all of you and especially Amit sir to allow us for this beautiful occasion। और बहुत अच्छा लगा आज हमें, आप लोगों ने भी काफी धैर्यपूर्ण से हमारा बातें सुनी। और मैं चाहता हूँ हमारे ग्रुप की तरफ से हम लोग कुछ मैसेज कार्ड और पूरी जगन्नाथ प्रसाद कुछ प्रसाद भी लाए हैं आप लोगों के लिए, हम लोग शेयर करना चाहते हैं। इट इज ऑल ऑफ अ गुडविल गेस्चर फॉर अस। कोई कुछ हमें ऐसे हम लोग भी ऐसे एक गुडविल गेस्चर की तरह ही आए हैं यहाँ पे, और यही मैसेज संदेश आप तक पहुंचाना था, यही हमारे आने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हो सकता है यार। सर thank you very much, the team from Eager to Forge Ahead. We are very pleased to have this team who enlightened us on Aurobindo, the great man and the Mata, and I'm sure the young mind who have listened, they also must have come to know in details about the life of the great man, how the partition happened and what his role was, what was his preaching, what is his vision, and this is one thing which is very different what the NCC cadets have been doing till now. So many lectures of war and something related to armed forces, those were delivered to you. But this is something different, I would say, because it is a sort of spiritual as well as giving you a feeling of what is one Bharat, what should be a one Bharat. The vision which Mahatma he told he has and he has given us, and he wants to see from the heaven that Bharat gets united, and what it had was, and now again it comes in that structure, one Bharat. So we are all working towards that, and hopefully one day this will get achieved.
So I was watching all of you. Lot of unrest was there because the topic was such that not everyone has a liking for this, but still you somehow dared and passed it. So it's good. This is also one of your trainings. If something is not of your interest, still you are trying to show that you are giving full attention. This is also part of training only. But whosoever has listened it, who has heard each and every word and what is they wanted to pass the message, I'm sure that must have enlightened. I'm thankful to you all, team, and I wish the movement they are undertaking, they remain successful everywhere they go. That is what my wish is, and I'm sure wish of each and every one of you, that India, Bharat, should be shining and should lead in all spheres of life. Entire world should be looking up to Bharat for showing the way, spirituality, economically, in all spheres, I would say. So once again, thank you very much. एनसीसी में आए हैं तो देश के लिए कुछ करने की आपकी मन में एक उमंग होगा, है कि नहीं? जोर से। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ अभी यूक्रेन में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं देश के लिए और लोगों के लिए, इस मनुष्य के लिए, तो आप किसी भी स्तर पर रह के कर सकते हैं। अभी हमको मालूम है कि रूसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो ऐसे हुआ अभी एक जगह पे रशिया का एक टैंक था, और वहां एक फार्मर था। तो अपने देश के लिए एक फार्मर कुछ कर सकता है क्या? अगर युद्ध के बारे में बताया जाए तो वो कौन करेगा? नहीं, मैं युद्ध के बारे में बता रहा हूं, वो खाने के बारे में नहीं। एक ऑर्डिनरी मैन वो युद्ध में जाके कुछ कर सकता है? तो कौन कर पाएगा? आप लोग कर पाएंगे? आर्मी कर पाएगा। तो उसने क्या क्या बताया? वो अपने ट्रैक्टर से उस टैंकर को लगा के खींच के ले गया और उसके पीछे भाग रहे हैं रशियन सोल्जर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप किसी भी अवस्था में हो, अगर दिल में वो जुनून है तो आप कर गुजरेंगे। यही था एक छोटा सा इंसिडेंट, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। और जो भी जैसे कि सर अभी बताया कि बीच में कुछ रेस्टलेस लग रहे थे, तो ये यहाँ पे जो भी बताया गया है उसको अगर मैं 2 लाइन में बताना चाहूंगा, आपको एक प्रश्न करके बताना चाहूंगा। उस प्रश्न की खोज अगर आप कर लेंगे, उसका जो आंसर है वो इसी में था, लेकिन आप अगर ढूंढ के उस आंसर को आप खोज लेंगे तो आप समझिए कि ये जो सेशन था आप समझ पाएंगे और आप अपने जीवन के बारे में समझ पाएंगे। तो वो कुछ ऐसा है कि अकेले आए हो, अकेले जाओगे। क्या बोला? अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बस ये पता कर लेना कि क्यों आए हो और क्यों जाओगे। आप लोग रिपीट कर सकते हो सर? अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बस ये पता कर लो कि क्यों आए हो और क्यों जाओगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट किए, और आप भी इस प्रश्न को ढूंढिए। इसका उत्तर जब आपको मिल जाएगा, आप समझना आपके जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। अभी हम मेडिटेशन करेंगे और
जो आप देख रहे हैं हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर भविष्य में कभी भी आपको लगे कि आप लोग उनसे कुछ पूछना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर और मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू। और जो कार्ड भी आपको दिया जाएगा उस कार्ड में भी हमारा नंबर और मेल आईडी है।